Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students, this is class of physics for first year. Students, since so far we have completely covered our chapter number 1 and now we are going to the chapter number 2. Chapter number 1 is bit dealing with the measurement and the different concepts related to the measurement, like concept of precision, accuracy, uncertainty and like that. And at the end of first chapter we have studied about the dimensions of physical quantities. Now we are going towards our chapter number 2, which is basically related to the vectors and the state of equilibrium of a body. इससे पहले स्टूडेंट्स वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आप लोग अपनी मैट्रिक की क्लास में स्टडी करके आ चुके हैं. हम लोग आज के लेक्चर में उन्हीं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिव्यू करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा हम लोग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के लेक्चर. द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज़ द इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर्स. इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 1 में फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया है इनटू डिफरेंट क्लासेस, लेकिन वो हम लोगों ने डिवीज़न की थी, वो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने की थी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में फ़िज़िकल जो क्वांटिटीज़ थी उनको 3 क्लास में क्लासीफाई किया था: base physical quantities, derived physical quantities and supplementary physical quantities. Now in the second chapter we are going to classify the physical quantities on the basis of their direction, and on the basis of direction we have two different classes of the physical quantities, two main different classes of the physical quantities. The first is the scalars and the second one is the vectors. So what we are going to do, we are going to classify the physical quantities into the two classes. So here I have the physical quantities, and today we are going to classify these physical quantities on the basis of their direction. You know that simply the definition of physical quantities is what simply all those quantities that are measurable, observable are called as the physical quantities, and today we are going to classify the physical quantities on the basis of their direction. And on the basis of the direction we have two different classes of the physical quantities. On the basis of direction we have two classes of the physical quantities. The first class is simple, known as the scalars, and the second class is vectors. इस चैप्टर में हमारा फोकस vectors पे होगा. So how we can define scalars and how we can define the vectors. Scalars are simply all those physical quantities which can be completely specified by their magnitude and unit. सिर्फ और सिर्फ unit और magnitude की मदद से हम लोग इस तरह की quantities को completely specify कर सकते हैं. So we can say that scalars are simply quantities which can be specified completely by the unit and magnitude, while in case of the vectors we can define vectors as वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए यूनिट और मैग्नीट्यूड तो ज़रूरी है ही है, साथ में एक और एडिशनल चीज़ भी ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द डायरेक्शन. सो वी कैन डिफाइन वेक्टर्स एज दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी स्पेसिफाइड कम्प्लीटली बाय यूनिट. The first thing is unit, second thing is the magnitude, and the third thing which makes it different from the scalars is the direction. ड्यू टू ये डायरेक्शन ही है जो स्केलर्स को वेक्टर्स से डिफ्रेंशिएट कर देती है. सो वेक्टर्स आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज द डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटीज आर सिंपली डायरेक्शनल quantities.
So these are also called as the directional quantities. Now what are the examples of the scalars? The examples of scalar include mass. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह देते हो किसी बंदे का मास 40 किलोग्राम्स है. सो लेट अस सपोज इफ़ यू से 40 kilograms. So 40 is what? 40 is magnitude and kilogram is what? It is unit. The mass has no direction and you don't need to specify direction with the mass. Just like that आप लोग कह देते हो किसी भी बॉडी की जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर सेकेंड है, 50 किलोमीटर पर आवर है, whatsoever. So speed is also the scalar physical quantity. Speed like you say 50 किलोमीटर पर आवर or somewhat like that. लेकिन अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं, सपोज दैट स्टूडेंट्स यहीं पे मैं वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस पे डिस्कस करने लगा हूं. सपोज दैट योर टीचर सेज यू टू अप्लाई द फोर्स ऑन अ चेयर. आपको आपके टीचर कहते हैं जस्ट अप्लाई फोर्स ऑन द चेयर. नाउ दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट क्लियर, ऑल्दो इट इज़ क्लियर कि आपको टीचर ने जस्ट फोर्स लगाने का कहा है, लेकिन ये फोर्स कितनी हो, इस फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड हो, इस फोर्स की क्या डायरेक्शन हो सकता है टीचर नॉर्थ साइड फोर्स लगाने का इंटेंशनली कह रहे हो और आप लोग साउथ साइड फोर्स लगा दो. इसका मतलब ये कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके लिए मैग्नीट्यूड तो बताना मस्ट है, लेकिन साथ में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तब ट्रांसफ़र होगी जब साथ में आप लोग डायरेक्शन के भी बारे में बताओगे. सिमिलर जस्ट लाइक दिस, आपके पास जो मोमेंटम है, किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है, मोमेंटम के लिए मैग्नीट्यूड का होना तो मस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मोमेंटम की डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना होगा. सो वी कैन से दैट कि हमारी फिज़िक्स में कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में और यूनिट के बारे में बता दें तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तब जाके हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होगी. सच क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड यूनिट आर कॉल्ड एज दी वेक्टर्स. So for example, as I have explained in the example, force is a vector physical quantity and इसके लिए आप लोग मैग्नीट्यूड भी बताओगे, मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट भी मेंशन करोगे और डायरेक्शन के बारे में बताओगे. ओके, इसी तरह से आपके पास जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज़ ऑल्सो अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. सेम लाइक दैट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक field intensity, it is also a vector physical quantity, intensity. Okay, same like that आपके पास magnetic flux induction, that is also a vector physical quantity. Okay, this is the general classification of the physical quantities when we are discussing with respect to the direction. Simply scalars are completely specified by unit and magnitude. Examples are mass, speed, while the vectors are specified completely by unit, magnitude and direction. And the examples of force, magnitude and electric field, these are the common examples of the vector physical quantities. Now we are turning our attentions only and only towards the vectors and we will study in detail about the vectors in this chapter. So we are now turning our attention towards the vectors. Okay, first of all vectors को हम लोग define कर लेते हैं as we have defined here in this case that a physical quantities which can be specified by unit, magnitude and direction. लेकिन स्टूडेंट्स जो इसकी अथेंटिक और प्रॉपर डेफिनेशन है उसमें सिर्फ डायरेक्शन का होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी को वेक्टर कहोगे जिसकी डायरेक्शन हो और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों से एग्जांपल दूँ. आप लोग अपने चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में एक फ़िज़िकल क्वांटिटी पढ़ोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डायरेक्शन तो असाइन कर देते हैं,
लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, जिसकी वजह से हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फॉर द लार्जर वैल्यूज़ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर नहीं करते हैं। सो जब आप लोग वेक्टर्स को डिफाइन कर रहे हो तो आप लोग इसके लिए 3 चीज़ें मेंशन करोगे। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी completely specified by 3 things. First, they should have magnitude and unit. First, they should have magnitude and unit. Second, they should have direction. They should have direction. And third and most important, which makes the vector a real vector, is it should follow or should obey vector law of addition, and the vector law of addition we will study in the later part of this chapter. Okay, these three properties, if any physical quantity have, then that physical quantity will be the vector physical quantity. Now, how you can represent a vector physical quantity? There are 2 ways of representing a given vector physical quantity. So how we can represent vectors? Representation of vectors. We have 2 different ways of representing any vector. The first and the common way is known as the symbolic representation. And the second is the geometric representation. So in a symbolic representation आप किसी भी वेक्टर को सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर फोर्स है तो फोर्स के लिए F सिंबल डाल के उसके ऊपर वेक्टर साइन डाल सकते हैं। लाइक दिस, अगर फोर्स को आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है तो सिंबॉलिकली आप लोग फोर्स को F सिंबल और इसके ऊपर वेक्टर साइन डाल देंगे। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सिंबल फॉर द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज फॉर द फोर्स। आपकी बुक में जो यूज़ किया जा रहा है सिंबल वो यही सिंबल है। या समटाइम्स आप वेक्टर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जो सिंबल है उसको इटालिक फॉर्म में लिखते हैं। लाइक अगर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, फोर्स को इंडिकेट कर रहा हूँ, सो इसको मैं कुछ थोड़ा सा इटालिक फॉर्म में लिख दूँ। इस तरह से भी कई बुक्स में फोर्स को वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, आप लोग वेक्टर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंपली फोर्स वाला ही सिंबल लिखें, F वाला ही लिखें, लेकिन इसके डाउन एरो डाल दें, इस तरह से डाल दें। इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर्स को। ये तो मैं पर्टिकुलरली फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर कोई भी आपके पास जनरल वेक्टर है तो जनरल वेक्टर अगर A है तो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप लोग इस तरह से इटालिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपली आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो वेक्टर A, और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप स्मॉल लेटर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर्स को। ओके, इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा बोल्ड फेस फॉर्म में लिखते हैं तब भी वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक अगर आप लोग A को थोड़ा सा बोल्ड फेस कर देते हैं, इस तरह से A को लिख देते हैं, स्टिल इट इज़ representing a vector physical quantity. So these are the different ways of representing vector physical quantity. लेकिन आपकी जो बुक में symbols यूज़ किए गए हैं for representing vector physical quantity, वो ये 2 symbols यूज़ किए गए हैं। ओके, अब लेट अस सपोज दैट मेरे पास कोई भी एक जनरल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है A, जिसको मैंने अकॉर्डिंग टू योर बुक उस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने कहा वेक्टर के लिए 2 स्पेसिफिकेशंस होनी मस्ट है, तीसरी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होनी ये भी मस्ट है। सो 2 कौन सी है? एक है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, दूसरी है डायरेक्शन। सिंबॉलिकली हम लोग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? लेट अस सपोज कोई भी एक वेक्टर है तो उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। तो मैग्नीट्यूड को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंपल जो आपके पास वेक्टर है उसी वेक्टर को दोबारा लिखते हैं, लेकिन उसके ऊपर एरो हेड ना डालें। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर।
सो सिंपली ए विदाउट एरो हेड इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने बता दिया। सेकेंडली हमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है किसी भी वेक्टर के लिए। सो हम लोग डायरेक्शन कैसे बताएंगे, वही वेक्टर लिखेंगे, लेकिन इस वेक्टर के साथ सिंबल वही लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर इस तरह से एक कैप डाल देंगे, एक कैप टाइप। This is called as the unit vector. So unit vector is actually indicating the magnitude of that vector, and as the course proceeds we will keep discussing in detail about this unit vector. ये एक ऐसा vector है जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए यूज होता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। Here this a it is actually unit vector and it is used to represent direction. It is used to represent direction, and this unit vector always have magnitude, equal to equal to 1. Okay, this vector is representing the magnitude of this vector. So this is the symbolic representation of any vector, and you will see कि जब हम लोग numerical solve करेंगे या जब किसी vector को लिखेंगे तो उसको बिल्कुल इसी तरह से symbolic form में लिखेंगे. The second type of representation is known as the graphical representation. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स आप लोग किस तरह से करते हो, सिंपली आप लोग किसी भी वेक्टर को बाय द हेल्प ऑफ इट्स ग्राफ रिप्रेजेंट कर देते हो। तो जब कभी भी आप लोगों ने किसी भी वेक्टर को बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ मेंशन करना है तो आप लोगों ने कुछ थोड़े से स्टेप्स लेने हैं। सो लेट अस सपोज दैट मुझे कहा, मैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज दैट आई एम आस्क्ड टू रिप्रेजेंट द फोर्स विच इज़ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, आई एम आस्क्ड टू रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, और यू कैन से वेस्ट, जिस तरफ भी आप लोग कह रहे हैं। सो आई विल एक्सप्लेन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज दैट यू आर आस्क्ड represent the force which is vector, represent force which is vector physical quantity, force of 20 newtons in east direction or towards east side direction. So what you have to do, you have to take few steps to represent the vector graphically. The first step that you have to take is that you have to draw the direction indicators. मैंने direction indicators draw करने हैं। देखिए मुझे फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। मैग्नीट्यूड विद द यूनिट मुझे ये गिवन है, डायरेक्शन मुझे ये बता दी गई है ईस्ट साइड के हुआ है। तो मैं इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेंशन द डायरेक्शन इंडिकेटर्स। सो स्टेप 1 इज द डायरेक्शन इंडिकेटर। डायरेक्शन इंडिकेट मुझे कैसे होगी? सिंपल, आप इस तरह से, जिस तरह से आप लोग अपने मैट्रिक और अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस में, अपने मैट्रिक की क्लासेस में स्केच करते आए हो डायरेक्शन इंडिकेटर्स। सिंपली इस तरह से, या आपके पास ईस्ट साइड, दिस इज़ अ वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड, एंड दिस मच इज़ द साउथ साइड। ओके, डायरेक्शन इंडिकेटर आप लोग स्केच कर दिया। नाउ यू विल टेक सेकंड स्टेप नंबर 2, which is selection of suitable scale.
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सूटेबल स्केल? आप जब कभी भी वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो आप लोग उनको लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट करोगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड गिवन है, तो इस 20 न्यूटन को मैंने लाइन के साथ रिप्रेजेंट करना है। अब मैं इसको लाइन के साथ कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, तो मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी फिजिबिलिटी के लिए इसको एक खास सूटेबल स्केल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूँगा। कैसे एडजस्ट करूँगा? सपोज दैट आई सेलेक्ट द सूटेबल स्केल, आई से दैट 4 न्यूटन की जो फोर्स है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा एक लाइन के साथ, और उस लाइन की लेंथ कितनी मैं रख लेता हूँ, उस लाइन की लेंथ में 1 सेंटीमीटर, और यस 1 सेंटीमीटर में उसकी लेंथ रख लेता हूँ। और यहाँ पे तो 4 न्यूटन, अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन 4 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे मेरे पास कितने हैं 20 न्यूटन्स हैं, तो 20 न्यूटन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी? सिंपली 4 को आप लोग यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 ज़ा 20, तो दोनों साइड आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप जब 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे यू विल सिंपली गेट 5। सो अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन 4 न्यूटन को रिप्रेजेंट करिए तो 5 सेंटीमीटर की लाइन 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगी। सो नाउ आई हैव सिलेक्टेड द सूटेबल स्केल। नाउ आई विल डू व्हाट, आई विल ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। सो माय स्टेप नंबर 3 विल बी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। Step number 03, it is related with the sketching of representative lines. So now how I am going to represent my vector? Okay, simply I can see that east उस साइड की तरफ है, तो इसका मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन है ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। सेकंड, कितनी फोर्स लग रही है? 20 न्यूटन की लग रही है, और 20 न्यूटन कितनी लाइन से रिप्रेजेंट होगा? सिंपली 5 सेंटीमीटर की लाइन से रिप्रेजेंट होगा। सो मैं सिंपल क्या करूँगा, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दूंगा टुवर्ड्स द ईस्ट साइड। So I will do what? I will simply draw a line of 5 centimeter towards the east side. अब फोर्स किधर लग रही है? टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन लग रही है। अब मैंने एरो हेड अपना लगाना है, तो चूंकि मुझे पता है ईस्ट साइड फोर्स लग रही है, तो मैंने इस तरह से ईस्ट साइड की तरफ एरो हेड लगा दिया। अब इस लाइन की लेंथ आप लोगों ने अपने स्केल से मेजर करके लगानी है, और वो कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ दिस लाइन विल बी 5 centimeter, and this line is representing what? It is representing force of how much? Of 20 Newton. So this line is actually representing the force of 20 Newton. Same like that, अगर आपको एग्जाम में जस्ट ये एक लाइन दे दी गई हो और आपसे पूछा हो कि इस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस साइड है, और साथ में आपको सूटेबल स्केल गिवन हो, तो सिंपली डायरेक्शन देख के आप लोग इसको डायरेक्शन इंडिकेटर से कंपेयर करोगे। टुवर्ड्स ईस्ट साइड है तो आप लोग बता देंगे टुवर्ड्स ईस्ट साइड है। सेकेंडली आपको 5 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है और आपको सूटेबल स्केल गिवन होगा, तो आप लोग अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल बता सकते हो कि ये 20 न्यूटन की फोर्स है। सो दिस इज प्रॉपर वे ऑफ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनी वेक्टर बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड। अब आप लोग जब अपने बुक में देखोगे तो वेक्टर्स को स्केच किया गया है इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो हाउ वी स्केच द वेक्टर्स ग्राफिकली इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिव्यू कर लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू रिव्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट system, or it is also called as rectangular coordinate system or rectangular coordinate system, coordinate system। okay, कार्टेशियन ये साइंटिस्ट के नाम से है जिसने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। इससे पहले आप लोग ये सिस्टम अपने मैथमेटिक्स में मैट्रिक की क्लास में स्टडी कर चुके हैं, इसको अभी दोबारा से रिव्यू भी कर लेते हैं। सिंपली अगर मैं 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ तो मेरे पास सिंपली 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो दीज आर 2 परपेंडिकुलर लाइंस which are intersecting each other at a particular point. The point of intersection of these 2 lines is called as origin.
इंडिकेटेड बाय ओ, और इसके कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने पढ़े हैं 0 एंड 0 होते हैं। जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप लोग एक्स एक्सिस कहते हो, तो इसके एक साइड को एक्स ओ एंड सेकेंड एंड को एक्स प्राइम। यहाँ पे आपके पास जो वाई एक्सिस है, ऑब्वियसली ये लाइंस इन्फिनिटी तक जा रही हैं, तो इसको आप लोग वाई एक्सिस बोल देते हो, वाई ओ वाई प्राइम। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बेसिकली होता किस लिए है, क्योंकि आप लोग इसकी मदद से किसी भी पॉइंट की लोकेशन जो है उसको स्पेसिफाई कर देते हो। यहाँ पे आपके पास नंबर्स मेंशन होते हैं लाइक 1 2 3 4, सेम लाइक इस साइड पे नेगेटिव्स में होते हैं -1 -2 -3, इस साइड पे टॉप साइड पे पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड डाउनवर्ड साइड के ऊपर नेगेटिव। सपोज दैट आपको किसी एक पॉइंट का कहा जाता है, पॉइंट का आपको 2 एंड 3, ये पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ पे पाया जाएगा। सिंपली आप सबसे पहले वाले पॉइंट को एक्स कोऑर्डिनेट्स सपोज करते हैं और सेकंड वाले को वाई कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट 2 यूनिट्स है, तो मतलब आपने ओरिजिन से 2 यूनिट्स मूव करना है, 1 यूनिट 2 यूनिट इस पॉइंट पे आ गए। वाई एक्सिस पे आप लोगों ने 3 यूनिट्स मूव करना है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट मूव करना है। अब आपने देखना है इस पॉइंट, यहाँ पे आपके पास कौन सा पॉइंट आ रहा है। सिंपली जो 2 के ऊपर है यहाँ से एक लाइन स्केच कर लें इस तरह से, और 3 से जो है यहाँ से एक अलॉन्ग दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन स्केच कर लें। द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट एंड दिस पॉइंट हैज़ द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 3 एंड सेम लाइक दैट। इसी तरह से आप लोग वेक्टर्स को भी स्केच कर सकते हैं। वेक्टर्स को किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप कैसे स्केच करेंगे। सिंपली सपोज दैट दिस इज वंस अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वाई एक्सिस वाई ओ वाई प्राइम एंड दिस मच इज द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स ओ एंड एक्स प्राइम। नाउ सपोज दैट मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है जो ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में। सो आई कैन रिप्रेजेंट दैट मच वेक्टर बाय दिस मच। कोई भी एक जनरल वेक्टर में ले लेता हूँ, दिस अ वेक्टर ए। आपको इसके मैग्नीट्यूड के बारे में गिवन होगा, उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग आप लोग इसकी लाइन ये जो लाइन ड्रॉ की है इसकी लेंथ उस मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग होगी, और इसकी डायरेक्शन आप लोग कैसे स्पेसिफाई करोगे, बाय द हेल्प ऑफ सिंगल एंगल विच इज़ एंगल थीटा, एंड इट इज़ ऑलवेज बाय कन्वेंशन मेजर्ड इन द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो यू विल सी कि हम लोग जैसे जैसे इस वेक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे लेके चलेंगे, जैसे जैसे हम लोग कोर्स के मज़ीद डीप में जाएंगे, आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो अभी आपको बिल्कुल न्यू फील हो रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अगेन बार बार वहाँ पे रिपीट होंगी, और वहाँ पे रिपीट करते हुए मैं आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें दोबारा बताऊँगा, और ये आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल साथ साथ में क्लियर हो जाएंगी। व्हाट आई रिकमेंड यू बाय नाउ इज़ दैट कि आपकी बुक में जो जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का और किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली और सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसका तरीका बताया गया है। जस्ट गो थ्रू दैट मच लिटरेचर, उससे आप लोगों को जनरल आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होंगे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी हाउ वी विल यूज दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू add the vectors by a special rule which is known as the head to tail rule. Till that students, Allah Hafiz, thank you very much.